کچھ وقيل وقضي بينهم بالحق العالمين بسم الله الرحمن الرحيم العزيز میں کہہ رہا راجک بھائی یہاں کرسی ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے کیا یار 4 گھنٹے تو کھڑے کھڑے بہت ہو جائے گا ایک جگہ کھڑے کھڑے ہے نا ڈلوا دوں مطلب وہ ہاتھ ریکارڈنگ تو وہ چلتی رہی ہے ایک جگہ ہاتھ روک کے بھائی کیمرہ ومرہ گھمانا ومانا ہو رہا تو اٹھ جائے گا نا کوئی دقت نہ ٹینشن لو اس بات کی یار ٹھیک ہے
الذي يوسوس في صدور الناس من الناس صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، صداقت شرافت دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن. یہ بچے آگے بیٹھے ہیں، آپ حضرات بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، آگے آ کر بیٹھ جائیں. یہ آپ کی نہیں نکالا گیا ہے، اپنا اسٹیج ہے الحمدللہ. پیچھے کرتے بچوں اٹھ جاؤ اور آپ پیچھے پہنچ جاؤ، پیچھے پہنچ جاؤ. آپ حضرات آگے آ کر بیٹھ جائیں. جتنے پیسے یہ کماتے ہیں زمانے والے، اتنے پیسوں کی اگربتیاں لگا دیتے ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اور ادھر ادھر جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں، بس یہی گزارش ہے، آپ ساتھ چلا کر چلنا چاہیے. نمرود اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا. فرعون اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا. قارون اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا. جب اللہ نوازے تو اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ سر جھکا کر مچلنا چاہیے، کیونکہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرت کو چھین کر گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرنا، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. وہ جن کے نام کا چرچا ہر ایک جہان میں ہے، وہ جن کے نام کا چرچا ہر ایک جہان میں ہے، انہی کے نام کی خوشبو میری زبان میں ہے. وہ بات کہاں مدینے کے سب مکانوں میں، جو بات حضرت ایوب کے مکان میں ہے، جو بات حضرت ایوب کے مکان میں ہے. آئیے سماعت کریں، آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ العزیز. تصور ہی تصور کے نام پر ہم کو کسی پارٹی کا نہ سمجھیے ترجمان، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں. وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. یہ محبت کا خاندان ہے جناب، انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. نعرہ لگنا چاہیے. رسالت، حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، دستار بندی، فیضان اعلیٰ حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر. بات لیا جاؤ، دل میں چھو جائے وہی بات لیا جاؤ. تم سے اتنی ہے گزارش اس محفل کی، میرے سرکار کی حسینات لیا جاؤ. علماء سنت حاضر عزت صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ. جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے چمکا، جو سب سے پہلے وہ تارا کہوں تجھے وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے وجہ وجود آدم و حوا کہوں تجھے. یاسی کہوں مزملو کہا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ ماہی تجھ سا کوئی ہوا ہے نہ ہو، کوئی ہوا ہے نہ ہوگا کوئی کبھی. میں ہی نہیں یہ کہمتی تیرے تو وصفے بے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اس روشنی کو روک نہیں پائی بندشیں، کو روک نہیں پائی بندشیں.
ہر سب تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ جس کو سبھی گدا سنتے ہی جھوم جاتے ہیں جس کو سبھی لیکن رضا نے خطی میں سخنیس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں زیبا کہوں تجھے بات معلوم قدرت بات پڑھیے خوشبوؤں کی طرح میری آوازی عشق کی محفلوں میں بکھر جائے گی خوش آواز بھی عشق کی محفلوں میں بکھر جائے گی خوشبوؤں کی طرح میری آواز بھی عشق کی طرح میری آواز بھی عشق کی محفلوں آواز بھی عشق کی محفلوں کو نعتیں سناتے ہوئے اس زمانے کو نعتیں سناتے ہوئے کار تو جانتے ہیں مجھے ان کا عاشق ہوں پہچانتے ہیں مجھے میرے سرکار تو جانتے ہیں مجھے ان کا عاشق ہوں پہچانتے ہیں مجھے میرے سرکار تو جانتے ہیں مجھے ایک کانٹا بھی مجھ کو چبھے گا اگر ایک کانٹا بھی مجھ کو چبھے گا اگر تو مدینے تلک یہ خبر جائے گی ایک کانٹا بھی مجھ کو چبھے گا اگر تو مدینے تلک یہ خبر جائے گی تو ایسا کرو عشق سرکار سینے میں پیدا کرو شاعری کہہ رہے ہو تو ایسا کرو عشق سرکار سینے میں پیدا کرو ایسا کرو عشق سرکار سینے میں پیدا کرو پھر یہ لہجہ کرے گا دلوں پہ اثر پھر یہ لہجہ کرے گا دلوں پہ اثر شاعری خود بخود ہی نکھر جائے گی پھر یہ لہجہ کرے گا دلوں پہ اثر شاعری خود بخود ہی نکھر جائے گی خوشبوؤں کی طرح میری آواز بھی عشق کی محفلوں میں بکھر جائے گی گدائے نبی ہو گئے جو کوثر گدائے نبی ہو گئے اپنا دعویٰ ہے وہ جنتی ہو گئے جو کوثر گدائے نبی ہو گئے اپنا دعویٰ ہے وہ جنتی ہو گئے عشق سرکار کی جس کو دولت ملی عشق سرکار کی جس کو دولت ملی عشق ہی کی بدولت ولی ہو گئے عشق سرکار کی جس کو دولت ملی عشق ہی کی بدولت ولی ہو گئے جو یہ کہتا ہے کہ میلاد رسول اللہ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں لبیک منانا چھوڑو ایسے کم وقت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو جو یہ کہتا ہے کہ میلاد منانا چھوڑو ایسے کم وقت سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا
बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो फिर दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदके में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो फिर दुनिया छोड़ो। ये उधर मेरे भाई खड़े हुए हैं, चाहे चचा लगते हो या ताऊ लगते हो, इधर आकर बैठ जाए। बहुत देर से गुजारिश की जा रही है आपसे। ये बताइए, बरेली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने समाअत किया था वो मोहतरम लहजा सिरसी की सरजमीन से चलकर हमारे दरमियान आया है। और शायर इस्लाम मताए नाम बुलबुले बादे मदीना जनाब अहमद रजा सुल्तानी बिसौली की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। आपको बहुत ही मोहब्बत इंशाअल्लाह। आप हजरात एक बार चलकर कहें सुभान अल्लाह। मैं इस बात से आशना कर दूं कि सुभान अल्लाह कहना कोई मेरे बाप की तारीफ नहीं है, नहीं आपके बाप की तारीफ है, बल्कि खुदाए पाक की तारीफ है। हम लोग अगर खुदाए पाक की तारीफ करेंगे तब भी अल्लाह पाक है, नहीं करेंगे तब भी अल्लाह पाक है। खुदा हमारा मोहताज नहीं, हम खुदा के मोहताज हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। और सुभान अल्लाह का माना आता है अल्लाह पाक है। जब आप बार बार अपनी जुबान से कहेंगे ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह आपको पाक कर देगा सुभान अल्लाह। और अक्सर इस तरह होता है कि जब सादे प्रोग्राम में बोलने से आवाज़ बैठ जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ जब कोई सुबह पूछता है कि आपकी आवाज़ क्यों बैठी है, तो फख्र के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा दिल में अगड़ाई लेता है और एक बात निकलती है कि रात अल्लाह के हबीब का जिक्र किया था सुभान अल्लाह, इसलिए ये आवाज़ बैठी है। कल को तुम्हारे लिए भी ये सबूत पैदा हो जाए। आप हज़रात इस तरह से सुभान अल्लाह बोले, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बोले कि आपकी आवाज़ बैठ जाए। कल का आपसे कोई पूछे कि आपकी आवाज़ क्यों बैठी है, तो आप भी जवाब दें। आपके दिल में भी इश्क़ मुस्तफ़ा अंगड़ाई ले और आपका जवाब बस यही हो कि रात अल्लाह के हबीब का जिक्र किया था इसलिए आवाज़ बैठी है सुभान अल्लाह। मर्तबा कितना है आला इमाम ज़ादों का, मर्तबा कितना है आला इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। मर्तबा कितना है आला इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। आइए हजरात अपने खिताबत के लिए आपके हजरात की समातों के हवाले। लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। कोई लीडर नहीं देंगे न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, बरोसे हश्र फरिश्ते भी गवाही देंगे। हजरत हाथों को उठा के नारा लगाएं, हैदरी के आला हजरत दस्तार बंदी। रौनक स्टेज मेरे मिलत के नौजवान साथियों, पर्दा नशीर माँ और बहनों, देखिए आवाज आ रही होगी। आप हजरात इधर उधर खड़े हुए, अच्छी बात नहीं है। कोई आम महफिल नहीं है, ये सरकार की महफिल है। ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله العظيم وصدق على رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। तिलावत करी, दिल तो ये चाह रहा था कि आप कुरान नेकियों में नेकियां भी हमें मिल रही थी, कुरान शरीफ का पढ़ना और सुनना बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ी। और ये जो महफिल सजाई गई है, जलसा सजाया गया है, ये दस्तार बंदी के मौके पर सजाया गया है। ये वो दस्तार बंदी है। इस मदरसे से 5 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर निकल रहे हैं। सरजमीन पर आए और मदरसे में इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। तो देखिए, आप ये सोचे कि इनका फायदा है, या जिस बस्ती में मदरसे चल रहे हो, तालिबे इल्म हो, उस बस्ती से परवरदिगार आलम 40 रोज तक आने वाली परेशानियों को दूर करना। कितना बड़ा मर्तबा है। किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, किसी कब्र पर आज़ाब हो रहा हो,
जो 40 रोज तक इल्म हासिल कर रहे हो, उस बस्ती का क्या आलम होगा। जब हाफिज कुरान इल्म हासिल करने के लिए अपने अजीज व अकारिब को छोड़कर आते हैं और आने के बाद में अपने घर वालों को छोड़कर अपनी नींद को तर्क करके अपने सीने में एक एक हर्फ रटकर अपने सीने में कुरान को बसाते हैं। जब कुरान को बसाते हैं अपने सीने में, तो देखिए वो आलम क्या आलम होगा कि एक हर्फ को रट रहे हैं रातों दिन, सीने में कुरान को बसा रहे हैं और सीने में कुरान को बसाने के बाद में इनकी दुनिया भी समझ रही है और आखिरत भी समझ रही है। अगर हमने हाफिज कुरान ही जब हश्र का रोज होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, हश्र के मैदान में सबको अपनी अपनी पड़ रही होगी। यहाँ तक कि बाप बेटे का साथ नहीं देगा, बेटा बाप का साथ नहीं देगा, लेकिन कोई मदरसे में गरीब बांधा जाएगा, कोई हाफिज कुरान तुम्हारी निजात का जरिया बन जाएगा। हश्र का रोज होगा प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, उनके माँ बाप के सर पर शफाअत का ताज बंधा हुआ होगा। हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर शफाअत का ताज बंधा हुआ होगा। फरिश्ते बहुत से लोगों से पूछेंगे, ऐ फरिश्तों, ये कौन लोग हैं जिनके सर पर शफाअत का ताज बंधा हुआ है। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ये दुनिया में थे, इन्होंने इनके बाप ने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, मजदूरी कर मेहनत कर इन्होंने घर वालों को छोड़कर अपने अजीज व अकारिब को छोड़कर अपने सीने में कुरान को बसाया। यहाँ इस्लामी भाइयों, आप ये नहीं समझे कि उनके माँ बाप की सर पर शफाअत का ताज बंधा हुआ होगा हाफिज कुरान के, लेकिन जिसने हाफिज कुरान की खिदमत की है, जिन्होंने उन्हें खाना खिलाया है, जिन्होंने उनसे मोहब्बत की है, निजात का जरिया वो भी रखती है। तो जन्नत इंतजार कर रही है। वो हाफिज कुरान कहेंगे कि ऐ फरिश्तों सुनो, जब तक कि मेरे माँ बाप मेरे साथ जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं तन्हा अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। फिर परवरदिगारे आलम की बारगाह में फरिश्ते पहुंचेंगे और अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम के हाफिज कुरान ने ये कह दिया कि जब तक कि मेरे माँ बाप मेरे साथ जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं तन्हा अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। लेकिन हाफिज कुरान कहेगा, फरिश्तों सुनो, अभी नहीं जा रहा अपने माँ बाप को लेकर। जब मैं दुनिया में था, जब मैं मदरसे में इल्म हासिल किया करता था, जिन्होंने मुझे पानी पिलाया, जिन्होंने मुझे खाना खिलाया है, जिन्होंने मुझसे मोहब्बत से पेश आए, अखलाक से पेश आए हैं, जिन्होंने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, जिन्होंने मेरी खिदमत की है, जब तक कि वो मेरे साथ जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं तन्हा अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा। और इससे फिर परवरदिगारे आलम की बारगाह में पहुंचेंगे और अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम के हाफिज कुरान ने ये कह दिया। तो इतना बड़ा मर्तबा है हाफिज कुरान का, आज दस्तारबंदी है, इस गांव का नाम है, बस्ती का नाम है, और इस बस्ती में जो हजरात रह रहे हैं उनका नाम है कि सुजानपुर की सरजमीन से आज 5 बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकल रहे हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया है। और कसीर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आती, तुम्हारे हाथों की कमाई का नतीजा है जो हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर परेशानी आने की सवाल पसीना पी लिया होगा, गुलाबों ने मोहम्मद का पसीना पी लिया होगा, महकने के लिए हुस्ने करीना पी लिया होगा, गुलाबों ने मोहम्मद का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। तुम कैसे लोग हो यार, खामोश बैठे हो, नबी के नाम से पत्थर पिघलते हैं। पत्कारियां रब रूठ जाएगा, मत करो पत्कारियां रब रूठ जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे, कमीना छूट जाएगा। मत करो पत्कारियां रब रूठ जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे, से मदीना छूट जाएगा। तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं, ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं, जिस तरह प्यासे समुंदर की तरफ देखते हैं, ऐसे हम साकिए कौसर की तरफ देखते हैं, जिस तरह प्यासे समंदर है। अहले
اہلیت کا توجہ، لوہنوں کے نیزہ سے تلاوت کی صدا آتی ہے، لوگ حیرت سے کٹے سر کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ حیرت سے کٹے سر کی حضور حسن پہ مغرور ہے یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے، حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ آئیے حضرات میں سنبل کی سرزمین سے چل کر آنے والی شخصیت جناب سائر اسلام مدعی خیر الانام بلبل باغ مدینہ جناب حافظ و قاری زبیر رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور بہترین کلام سے سامعین کے قلوب جھگمگائیں۔ آپ حضرات استقبال کے لیے نعرہ لگائیں، محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک ہندوستان، جانپور کا زندہ دل مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الہی اور سلطان جائیں گے، اس راستے پر پھول بچھائیں گی رحمتیں، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے۔ آپ کے گاؤں کی سرزمین پر میرا ہوا ہے، میں نے آپ کو بڑی محبت سے سلام پیش کیا ہے، آپ حضرات نے سلام کو ہلکے میں لے لیا، ایسے لیا جاتا آپ کے یہاں پر، شروع تک اور لاسٹ تک ایسا ہی بولنا ہے انشاءاللہ، تب کچھ میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نعت پاک کا ایک مطلع و چند شعر پڑھتا ہوں، فرمان محبت سے ایڈوانس میں بولے سبحان اللہ۔ ہمارے فرمائش ہے فرمان محبت سے دونوں ہاتھ رکھ کر بولے سبحان اللہ، اور درود شریف پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ملاحظہ فرمائیں محبت سے اور بولیں سبحان اللہ۔ قبر ہوتے ہوئے خلد کی کیاری نکلے قبر سے ہوتے ہوئی خلد کی کیاری، نکلے قبر سے ہوتے ہوئی کیاری، نکلے شہر طیبہ، شہر طیبہ میں اگر روح ہماری، شہر طیبہ میں اگر روح ہماری نکلے، اور یہ شعر بھی سن لے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے آقا کا حسن اخلاق، میرے آقا کا حسن اخلاق، اللہ اللہ میرے آقا کا حسن اللہ اللہ میرے آقا اخلاق، کلمہ پڑھتے کلمہ پڑھتے ہوئے صدیوں کے پجاری، ہوئے صدیوں کے پجاری نکلے، اسی انداز میں سنتے آپ سر میں اس دم کوئی نظر
جس طرح فاطمہ زہرا کی سواری نکلے، جس طرح فاطمہ زہرا کی سواری نکلے، قبر سے ہوتی ہوئی کھلے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح کے آفدرات تب کام بنے گا، ایسے نہیں بنے گا نا؟ میری طرف توجہ ہے آفدرات، محبت سے بولے ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ کلام اور میں پڑھتا ہوں، سنیں انشاءاللہ آپ کے دن تک نہ پہنچے تو جتنے آپ نے یہ پیسے دیے نا واپس انشاءاللہ، پر سچے دل سے آپ سنیں گے تب بولے محبت سے یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ میں دو تین شعر میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، بلائے محبت سے اور مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ بھائی میری طرف پڑھیں، میری طرف دیکھیں انشاءاللہ، تب میں پڑھ پاؤں گا۔ دیکھیں در داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو دے جاتا، داغ فرقت طیبہ پر میرا دم نکل جاتا، پنڈت ایسے میں 5 ہاتھ پہ بولنے میں ایسے میں پڑھے نا نواز وغیرہ باہر کے بچے پڑھ رہے تھے۔ حافظ بنے کام یہ کرنے والا کاٹوں کام یہ کرنے والا کاٹوں موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، بولے موت لے کے زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جا ڈالے مجھے لگا لگنا ہٹ سکتا ہے۔ موت لے کے آ جاتے، ہر زندگی بن کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے موت سے لگے لگے زندگی میں مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب لے جاتا۔ اور دو شعر پڑھ کے نہیں ہو سجایا گیا ہے، بھائی آپ بولیں گے تو پڑھ پاؤں گا۔ ہے
बढ़ा दिया। आलम को ऐसा बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। सजाया गया है तो आलम को ऐसा का नक्शा सा नजर आ रहा है। वो देखो जहां में नबी आ रहे हैं। वो देखो जहां में काबा नजर सजाया गया है और लबों से लगा कर उमर कह रहे हैं। लबों से लगा कर उमर कह रहे हैं। लबों से लगा कर उमर कह रहे हैं। तू पाथर है तेरी भी औकात क्या है। इसलिए हमने ये बौसा लिया है कि नबी का वो बौसा नजर आ रहा है। सजाया गया है। और अपने वालदा से मोहब्बत करते हैं। चलो जाएंगे शेर सुनने के बाद इंशाल्लाह। सुने शेर मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। ये बौसा दिया है नबी का वो बौसा नजर आ रहा है। गरीबी ने रोका है अब तक के रसेता। गरीबी ने रोका है अब तक के रसेता। मैं जाना सका अब तक के शहर माका। गरीबी ने रोका है अब तक के रसेता। मैं जाना सका अब तक के शहर माका। मेरा हज यही सजाया गया है। पूरा मत ना बोले नमाज़ जनाज़ा तेरे सामने से फना का जनाज़ा। मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। एक आशिक़े नबी को जब जहर दिया गया था तब उसने कुछ अशार लिखे थे, क्योंकि उस जहर का असर नहीं हुआ था। तो उसने कहा था कि मदीना हम गए होते तो कोई और बात होती। मदीना हम गए होते तो कोई और बात होती। जाकर फिर ना आते तो कोई और बात होती। चेहरा बिगाड़ देता है अली के जिक्र को अदनान समझना है मुनकिर। अली तो वो है एक हाथ ही खैबर उखाड़ देता है। एक हाथ ही खैबर उखाड़ देता है। हम खामोश रहने वालों में से नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुस्कुराने वालों में से हैं। एक बार कहें सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर कहें या रसूल अल्लाह। हिफ्ज़ नामूस रिसालत मोमिनों की शान है। हिफ्ज़ नामूस रिसालत मोमिनों की शान है। मुस्तफ़ा पर जान देना बस यही ईमान है। रिसालत मोमिनों की शान है। मुस्तफ़ा पर जान देना बस यही ईमान है। हम अपने आका पर कुर्बान हैं तो क्या ये एहसान है। ये दिल भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है। ये दिल भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है। दुश्मनाने मुस्तफ़ा से कोई समझौता नहीं। दुश्मनाने मुस्तफ़ा से कोई समझौता नहीं। दुश्मनाने मुस्तफ़ा से जंग का ऐलान है। दुश्मनाने मुस्तफ़ा से जंग का ऐलान है। आइए हज़रात, अब मैं कुछ देर के लिए दावत सुबह देता हूँ। आइए हज़रात, बताए रसूल बुलबुले बाग़े मदीना बधाइयों की सर सकती है। नबी के नाम पर बोलती है। नारा लगाएं, नारे तकबीर, मुसलमान खामोश मजमा, नारे तकबीर।
तकबीर, वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले प्यारे आका करीम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सुएला फेरते हैं, वो सुएला लजार, वो सुएला फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, अरे मांगते ताजदार देते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, कि हाय गाफिल हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। एक बार और दूसरी पढ़ें। चार खिलाफ हो तो कुछ नहीं हो, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, कोई भी खिलाफ हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। तो ये जमाना तो कुछ नहीं होगा। आप लोग अपनी तवज्जो इधर रखें यार। नहीं होगा, खिलाफ हो ये जमाना तो कुछ नहीं होगा, खिलाफ हो ये जमाना। मैं हूँ तुम्हारा दीवाना तो कुछ नहीं होगा बल्ला, मैं हूँ तुम्हारा दीवाना तो कुछ नहीं होगा। से बोले तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। बहुत ही प्यारा शेर। मिटाना चाहेगी दुनिया तो कुछ नहीं होगा, मिटाना चाहेगी दुनिया तो। शेर पढ़ता
हूँ, कह दे या रसूल अल्लाह। ने तेरा जलवा तो कुछ नहीं, तृष्णा दिहानी चाहिए, खुश्क हो जाना सभी दरिया का पानी चाहिए। आजियो जिक्र शहे तृष्णा दिहानी चाहिए, खुश्क हो जाना सभी दरिया का पानी चाहिए। खानदाने मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा खरा और खानदानी चाहिए। खानदाने मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा खरा और खानदानी चाहिए। मर्तबा कितना है आला इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों ने। लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। मैं अपनी निज़ामत को मुख्तसर करते हुए बस आला हजरत के मुहब्बों को देखना चाहता हूँ। आला हजरत से मोहब्बत करने वाले मेरे एक शेर को सुन ले कि हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। ये उस पे मेरे मुस्तफ़ा की अता है, जो अहमद रजा आला हजरत बना है। वो तकबे में फतबे में सबसे जुदा है। आप हजरात अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, मिंबर नाज पे जलवावार नाबीरा सरकार कुतुब आज़म और की शख्सियत से ताल्लुक़ रखने वाली खानकाह है जनेटा शरीफ से आने वाली शख्सियत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद रिहान मियाँ साहब क़िबला की आमद है। और दूसरी जानिब बरेली शरीफ की सरजमीन से आने वाली यानी आला हजरत की नगर से आने वाली शख्सियत जनाब मुफ्ती अमानुल हक साहब भी मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में शेर को पढ़ता हूँ कि हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। ये उस पे मेरे मुस्तफ़ा की अता है, जो अहमद रजा आला हजरत बना है। जो अहमद रजा आला हजरत बना है, वो तकबे में फतबे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मोजिज़ा है, रजा मेरे आका का एक मोजिज़ा है। करे कोई आका की तौसीफ ऐसे, रजा ने बयां की है तारीफ जैसे। बहुत से उलूमों का मालिक रजा है, वो यूं ही नहीं आला हजरत बना है। अरे मुनकिरों का मियार देखो, अरे मुनकिरों का मियार देखो, फकत इल्म नहीं उसका किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो असमत भी सादात की जानता था, वो असमत भी सादात की जानता था। दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने हमारा अकीदा बचाया। रजा से मोहब्बत है हम आशिकों को, रजा से मोहब्बत है हम आशिकों को। उसी ने सहारा दिया सुन्नियों को, उसी ने सहारा दिया सुन्नियों को। रजा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो इससे जले समझो बर्बाद है। बगैर आबुदाना भी रह लेगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी। हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। ये सारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं, मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करता है। ये सारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं, मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करता है, मेरे रजा को हवाला तलाश करता है। शायद मुझे उम्मीद है अगर ज़िला बरेली में शेर को पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 लोग खड़े होकर नारा लगाते। खैर कोई बात नहीं, बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रज़ा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो। लगे नारा मजमे में इमाम अहले सुन्नत का, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो, किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। आइए हज़रात अब मोहब्बतों के साथ हजरत का इस्तकबाल करें नारे तकबीर रिसालत के साथ। अब हज़रात हाथों को उठा के नारा लगाएं, नारे तकबीर हैदरी आला हजरत, आला हजरत मुअज़्ज़मी गरीब नारे रिसालत सैयद रिहान मियां साहब के सिलसिले में महफिल जलसा इनेकाद पज़ीर है। मुझसे कबल बेहतरीन शायरी अच्छी निकाबत आपने समात की, अच्छी आपकी समातें हैं माशाअल्लाह। पढ़ने वाले बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और आप हज़रात बहुत अच्छा समात फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका ज़िक्र रसूल सुनाना फ़ौल ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ कहा जाए। बस मैं शहर बरेली से चलकर यहाँ तक आया हूँ तो बस खिराज अक़ीदत सरकार की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं कुछ लम्हों के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चाहें तो 5-10 मिनट आपकी खिदमत करूँ, वरना
हजरत सैयद साहब के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्ली अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन दा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन या अमान अल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहजादे गुलगुं क़बा इमदाद ज़ाख़ा क़ुत्बे आलमी ज़मान तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हज़रात कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल वजह तख़लीक़ कायनात मुतआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में सब लोग मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ व कारी तानिश रज़ा साके और शुजानपुर के बावकार ज़िंदा दिल गयूर मुसलमान कि आप हजरात ने बड़ी मेहनतें करके अपने सरमाए को खर्च करके अपने माल को खर्च करके अपनी नींदों को कुर्बान करके आज ये दस्तार बंदी के सिलसिले में इस जलसे का एहतमाम किया, जलसे का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और आप सबके तमाम जायज़ मकासद को पूरा कबूल फरमाए। आज माशाअल्लाह मदरसा फैज़ गरीब नवाज से माशाअल्लाह आज ये हुफ़ाज़ किराम आज के इस प्रोग्राम से इन हुफ़ाज़ किराम ने पूरी दुनिया इंसानियत को एक मैसेज दे दिया, पूरी दुनिया इंसानियत को एक पैगाम दिया। या आज जो लोग कुरान में तहरीफ करने की बात करते हैं, आज जो लोग कुरान में रद्दो बदल करने की बात करते हैं, आज जो लोग कुरान को गुंडों की किताब कहते हैं, आज जो लोग कुरान को कहते हैं कि कुरान दहशतगर्दी का पैगाम देता है, कुरान इंसान को सख्त बनाता है, आज जो कुरान की अजमत पर भोंकते हैं, उन लोगों को ये बता दिया कि ऐ कुरान के खिलाफ भोंकने वालों, ऐ कुरान की अजमत पर भोंकने वालों, ऐ कुरान की अजमत ताब कहने वालों, ऐ कुरान पाक में तहरीफ करने की बात करने वालों, ऐ कुरान को मिटाने की बात करने वालों, ऐ कुरान को दरिया में डालने की बात करने वालों, याद रखना तुम मिट जाओगे। कुरान की मुखालफत करते करते तुम खुद तो मिट सकते हो, तुम्हारे नाम मिट जाएंगे, तुम्हारे निशान मिट जाएंगे, तुम्हारी औलाद मिट जाएगी, तुम्हारा खानदान तबाह हो जाएगा, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, मगर कुरान ना मिटा था, ना आज मिटा है और ना सुबह कयामत तक मिटेगा। इसलिए कि जब तक हम हुफ़ाज़े किराम इन मदारिस इस्लामिया से पैदा होते रहेंगे, जब तक हम हुफ़ाज़े किराम जिंदा रहेंगे, कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए कि कुरान को ये तुलिया अब कैसे मिटाएगी, सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बनाया। कुरान भाई इन हुफ़ाज़े किराम की बड़ी कुर्बानियां रही है इस्लाम के लिए। आज जो परचमे इस्लाम लहरा रहा है, आज जो इस्लाम की बहारें नजर आ रही हैं, इन उलमाए किराम की कुर्बानियों की देन है। बस ज्यादा लंबी चौड़ी कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करना, बस एक दो बात कह के गुफ्तगू खत्म। इन हुफ़ाज़े किराम क्या क्या मकाम है, क्या कुर्बानियां हैं इनकी। हजरात
इन हुफ़ाज़ किराम की अब कुर्बानियाँ देखिए। मुल्क ईरान में कई साल पहले कुरान के खिलाफ एक आवाज़ उठी और मुकदमा कोर्ट में चला। मुकदमा क्या था कि कुरान ये इंसान को सख्त बनाता है, कुरान ये इंसान को आपस मुकदमा चला कि कुरान को मिटा दिया जाए, कुरान में तहरीफ कर दी जाए, कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए। हजरात, जब कुरान के खिलाफ आवाज उठ रही थी तो वक्त के बड़े बड़े धुरंधर खामोश थे, वक्त के बड़े बड़े लीडर खामोश थे, वक्त के बड़े बड़े नेता खामोश थे, वक्त के बड़े बड़े जमींदार खामोश थे। अगर कुरान की हिफाजत में, अगर कुरान के लिए किसी ने आवाज उठाई थी तो किसी और ने नहीं, बल्कि 17 साल के हाफिज कुरान ने आवाज उठाई। 17 साल के हाफिज कुरान ने आवाज उठाई और हाफिज कुरान ने कहा, कटघरे में खड़े होकर के क्या कहा, वकीलों की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या चाहते हो, कुरान को मिटा दो, क्या चाहते हो कुरान में तहरीफ कर दी जाए, क्या चाहते हो कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए, क्या चाहते हो कि कुरान की आयत को कुरान से निकाल दिया जाए, क्या मकसद है तुम्हारा। तो उस वक्त वकीलों ने कहा था, हाँ हम यही चाहते हैं कि कुरान को मिटा दिया जाए, हम यही चाहते हैं कि कुरान में रद्दो बदल कर दिया जाए। ये जुमले किसी और के नहीं, ये वहां वकीलों के जुमले थे। मगर कुर्बान जाऊं मैं उस हाफिज़े कुरान पर कि हाफिज़े कुरान ने कटघरे में खड़े होकर जज की आंखों में आंखें डालकर कहा था, ऐ जज साहब, तुम ये कागज पर लिखा हुआ कुरान तो मिटा सकते हो, तुम कुरान को दरिया में तो डाल सकते हो, तुम कुरान को दरिया में डाल सकते हो, तुम ये कागज पर लिखा हुआ कुरान तो मिटा सकते हो, मगर जब तक मुझ जैसे हाफिज जिंदा रहेंगे कुरान को नहीं मिटा सकते, मुझ जैसे हुफ़ाज़े किराम जिंदा रहेंगे कुरान को नहीं मिटा सकते, मौलाना दानिश जब तक जिंदा रहेंगे इनके सीने से तुम कुरान को नहीं निकाल सकते। अरे तुम खुद तो मिट जाओगे मगर कुरान नहीं मिटा सकते। ऐसा जाएगा बदले का ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। है कौले मोहम्मद कौले खुदा ना लाख मगर कुरान न बदला जाए। मेरे भाई ये है हुफ़ाज़े किराम, बड़ी कुर्बानियां रही हैं इनकी। मेरे दोस्तों, बातें ज़हन में, इरादा नहीं था, कोई मकसद नहीं था। सैयद साहब क़िबला का हुक्म हुआ, मैं कुछ लम्हों के लिए आपकी बातें सुनने में जो गलतियां सजद हो गई हूँ अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद इबादुर रहमान साहब, वल्द मोहम्मद इरफान साहब, फुलसिंगा। हाफिज मोहम्मद नादिर साहब, वल्द मोहम्मद सलीम साहब, फुलसिंगा। हाफिज साहब, वल्द मोहम्मद मरहूम मोहम्मद इसरार साहब, सिरसी। हाफिज मोहम्मद दिलसाद साहब, वल्द मोहम्मद मेराज, सिरसी। देखिए, आप देख रहे हैं, आपके सामने जो हजरात भी जलसे के लिए, मदरसे के लिए देना चाहते हैं, कहते नहीं है कि जो भी जिसकी हैसियत है, ये ईद का काम है और ये हाफिज़ कुरान बन के निकले माशाअल्लाह।
ये बहुत अखराजात होते हैं जलसे के भी, और आप खामोश बैठान हो तो उसके माँ बाप की सर पर शफात का ताज बंधा हुआ होगा। तो सभी से गुजारिश है, जलसे के लिए, मदरसे के लिए जो भी ताबन करना चाहते हैं, ये आप पंजतन के मानने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, तो हुसैन के नाम पर अगर आप 100, 200, 500, 1000 जिसकी जो हैसियत है, वो हैसियत के मुताबिक जलसे के लिए ताबुन, मदरसे के लिए ताबुन करें और सवाब दान हासिल करें। खामोश बैठे हो, ये सवाब का काम है, ये आखिरत का बैंक बैलेंस है। दुनिया में रहकर हम बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, ये हश्र के मैदान में दुनिया वाला बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा। जो हमने मदरसे के लिए ताबुन किया है, ये हमारा आखिरत का बैंक बैलेंस। ये हमारे मौलाना साहब ये 200 रुपये इनायत करते हैं मदरसे के लिए। बाग पर मौलाना इरफान साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये मदरसे के लिए 200 रुपये इनायत करते हैं। बाग पर बंदे को कबूल फरमाए, आने वाली परेशानियों को, आने वाली बलाओं को, बीमारियों को दूर फरमाए। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाई यार, कतरे कतरे से दरिया हो जाता है, फूल फूल से समंदर हो जाता है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये